जरा सोचिए, एक चोर आपके घर में घुसता है, आपकी सबसे मूल्यवान वस्तु चोरी कर कर ले जाता है। पुलिस उसे पकड़ती है, वापस आपके सामने लेकर आती है, आपके घर पे पहुंचाती है। आप क्या करेंगे? सोचिए, क्या आप उससे पनिशमेंट देंगे? क्या रिवेंज लेंगे? या फिर आप गुस्सा होंगे? एंड व्हाट इफ़ यू फॉरगिव हिम? क्या होगा यदि आप उसे माफ़ कर देते हैं? तो दोस्तों, नमस्कार पुनः, वेलकम बैक टू माय चैनल अनहर्ड चांद। टुडे वी आर गोइंग टू explore the story of Bishop in very powerful one-act play, The Bishop Candlestick, written by Norman Mackinnon. आज का विषय बिशप कैंडलस्टिक है और इसकी कहानी हम बाइलिंगुअल समझने का प्रयास करेंगे। आज की कहानी जो है, ये कहानी एक बिशप के बारे में है और ये कहानी बेसिकली दिस इज़ एडेप्टेड फ्रॉम लेस मिजरेबल, रिटन बाय विक्टर ह्यूज. Norman Mackinnon converted one emotional episode of that particular play into a beautiful one-act drama. यह प्ले हमें सिखाता है कि kindness can change a person more than punishment. यह प्ले हमें सिखाता है हमेशा दया दिखाना, क्योंकि दया ही वह एक अस्त्र है जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से बदलने में सक्षम है। चलिए जान लेते हैं इस पर्टिकुलर प्ले के मेन कैरेक्टर्स कौन कौन हैं। इसमें एक बिशप है, उसकी सिस्टर है परसों में, और साथ में कन्विक्ट है। कन्विक्ट यानी वो व्यक्ति जो अपराध कर रहा है, सर्जेंट और पुलिसमैन है। जो पूरा का पूरा होल प्ले है, इट रिवॉल्व्स अराउंड वन मैजिकल ऑब्जेक्ट एंड द नेम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज द सिल्वर कैंडलस्टिक एक्चुअली, दैट इज गिवन टू द बिशप by his mother. The play begins in the bishop's small cottage in France on a cold winter night. परसों में the bishop's sister is angry because the bishop keeps giving away all their belongings to poor people and needy people, and it is the work of bishop also. परसों में practical woman, उसे लगता है कि बिशप बहुत ज़्यादा ही दयालु है और लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं. She even complained that the bishop sold their silver salt sealers to help the poor woman. But despite poverty, the bishop remains calm, loving, and generous. Suddenly, a dangerous convict enters into the house. He is hungry, tired, angry, and full of hatred. उसे जेल में 10 साल बिताए थे क्योंकि उसने अपनी भूखी पत्नी के लिए खाना चुराया था. The prison tortured him so much that he says, "They took away my soul and gave me a devil in its place." Imagine the pain of that convict. A man who was once human now believes he is an animal. But the bishop does something unbelievable. He often offers food to the needy people. So he offers food to him also, warmth, shelter and respect. जब पूरी दुनिया इस क्रिमिनल को बुरा समझ रही थी, क्रिमिनल समझ रही थी, अपराधी समझ रही थी, बिशप ने उसके अंदर एक इंसान को देखा, उसे समझने का प्रयास किया. एट नाइट द कन्विक्ट नोटिसेस द सिल्वर कैंडलस्टिक. These candlesticks were the bishop's most precious possession, a gift from his mother. But party and fear overpower humanity. The convict steals them and runs away. यहाँ प्ले हमें यह दिखाने का प्रयास करता है कि गरीबी और दर्द इंसान को गलत करने पर किस तरह से मजबूर कर देती है. The next morning, police catches that convict and brings him back. The convict is terrified because he has stolen the candlestick of the bishop. He thinks his life is over now. But then comes the biggest shock for him also. The bishop tells the policeman, "I give him that candlestick." यही वो मोमेंट था जो पूरी कहानी को बदल कर रख देता है. The police leaves and then the bishop gives the candlestick to the convict and says him. He says, in effect, use these candlesticks to become an honest man again.
to leave the soul of animal. At this moment, the convict breaks emotionally. For the first time in years, someone trusts him. सजा ने उसे इतना क्रूर बना दिया था कि अब वो लोगों को और उनके प्रेम पर भरोसा ही नहीं कर रहा था, परंतु बिशप के प्रेम ने उसे फिर बदल के रख दिया. दिस इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द प्ले. लव रिफॉर्म्स बेटर देन पनिशमेंट. थीम ऑफ द प्लेज आर forgiveness. The bishop forgives even after being robbed. सच्ची महानता बदला लेने में नहीं, फॉरगिव करने में या क्षमा करने में. सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम इज काइंडनेस इन ह्यूमैनिटी. द बिशप सीज ह्यूमैनिटी even in the criminal also. Redemption. The convict gets a second chance to become a good person, good human being, a good citizen. और ये मौका हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, कम से कम एक बार तो मिलना चाहिए कि वो अपनी गलतियों पर पछता सके, उसे सुधार सके. नेक्स्ट जो थीम है दैट इज़ क्रिटिसिज्म ऑफ क्रूअल पनिशमेंट. इस पूरे वन एक्ट प्ले में बताया गया कि किस तरह से एक अच्छा व्यक्ति सिर्फ खाना चुराने के कारण पनिश्ड हुआ, और वो इतना बुरा तरह से पनिश्ड हुआ कि वह अब अच्छे इंसान से एक एनिमल में कन्वर्ट हो गया. जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर वन एक्ट प्ले के, दे आर बिशप, जिसमें बिशप है, और बिशप के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो काइंड है, सेल्फलेस है, फॉरगिवनेस है, स्पिरिचुअलिटी है एंड कंपैशनेट है. तो इस तरह से यदि आप देखते हैं तो बिशप कैंडलस्टिक एक बहुत अच्छा वन एक्ट प्ले है, और जो नॉर्मन ने लिखा हुआ है वो बस ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि समाज में क्रिमिनल ही बुरे नहीं हैं. कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटी भी क्रिमिनल को क्रिमिनल बनाने में मजबूर करती है. यदि हम उन्हें भी प्रेम से समझने का, समझाने का प्रयास करेंगे विदाउट पनिशमेंट, तो दे कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड दे विल बिकम अ गुड सिटीजन ऑल्सो. आई होप you can understand this particular video. It is bilingual. Maybe आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. यदि आया है तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं अन्य वीडियोस भी आपके लिए बना सकूं. लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, है ना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है. थैंक यू वेरी मच.